Hello friends, welcome to the channel. आज है lesson number 13. We'll be learning about articles a and the. हम बहुत commonly use करते हैं article sentences में. So how to use it we'll be learning in this lesson. Okay, how to use them correctly. So before we go ahead, I request you to subscribe to the channel so you can keep getting my videos as I make them. We use a, an and the very commonly in sentences. These are small words but are very important in the English language. Okay. Knowing when to use them is a good way to start forming sentences. Because when we know how to use them correctly, we will write correct sentences, we speak correct sentences. So there are two types of articles, definite and indefinite. Okay. So what does definite mean? Definite का मतलब है something sure, पक्का. ठीक है, हम जो पक्का, when we are sure about something. Now definite means something that is clear, true or sure. Okay. So definite article that we use in English is the. Of these three articles that we use in the English language, the is the definite article and a and an are the indefinite articles. Okay. So when we use the in a sentence, we limit the meaning of a noun to a specific noun or a group of nouns. ठीक है. The noun तो आप जानते हैं संज्ञा जिसे कहते हैं, वो person, place, animal और thing के आगे use होता है. And when we use the, हम उसका meaning limit कर देते हैं to a specific noun. Okay. कोई एक पर्टिकुलर चीज पे हम लिमिट कर देते हैं. ओके. जैसे हम एक एग्जांपल्स देखते हैं. द बुक्स इन द कबर्ड. अब यहाँ द बुक्स है, अब ये ग्रुप ऑफ नाउन्स है ना, लेकिन यूर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट some group of books which are in a specific cupboard. Okay, so here you will use the. Okay, now the bird on the tree, I'm talking about a specific bird on a tree. Okay, not a bird on any tree, I'm talking about the bird on the tree. The phone on the green table. The animals in the zoo. The boys in the classroom. ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे आई एम यूजिंग इट फॉर स्पेसिफिक nouns. Please give me the laptop. Now in the sentence, the books in the cupboard, I am referring to specific books in a specific cupboard. The definite article can be used with nouns that are singular or plural. जैसे boys was plural, animals was plural, phone was singular, bird was singular, books were plural. So we can use the with both, but they have to be specific. The is also used with uncountable nouns like water, air, etc. ठीक है. जैसे अगर हम bottle of water है तो it is countable, but when you just talking about water you cannot count it, right? So you there also it is used with uncountable nouns or it is entirely omitted, यानी कि बिल्कुल use नहीं किया जाता है. जैसे I love to fly over the mountains, I'm talking about a specific mountain. I love to fly over mountains, ठीक है, I'm talking about any mountain. ठीक है. Now she spilled the juice all over the counter. Now this is talking about specific juice that she spilled over the counter. But now if I write she spilled juice all over the counter, so I don't know which juice. It could be any juice that she spilled over the counter. Yeah, this is very subtle. लेकिन आप जब आप use करते हो तो इससे sentence का meaning change होता है. So note here that we do not use the articles a or an before uncountable nouns. ये जो uncountable nouns के साथ हम a और an में ही use करते हैं. नाउ फॉर डिस्क्राइबिंग जियोग्राफिकल प्लेसेस, यानी कि हमारे जो धरती में जो जगह हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम द यूज करते हैं. जैसे नदियों के नाम, नेम्स ऑफ रिवर्स, जैसे नाइल रिवर हो गया, द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, तो वहां द यूज होता है. अभी ओशंस या हमारे समंदर, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन. ठीक है. फिर पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, हमारे धरती में जो अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे इक्वेटर है तो उधर हम द यूज करते हैं. नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उधर भी द यूज होगा. फिर एरियाज, जैसे मिडिल ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो इसके हम द नॉर्थ, द साउथ, ओके, द ईस्ट, द वेस्ट. फिर डेजर्ट, जो हमारे रेगिस्तान है, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट. ओके. देन फॉरेस्ट, द गिर फॉरेस्ट, और ऐसे फॉरेस्ट के नाम के साथ भी द यूज होता है. लेकिन द कई जगह कहाँ यूज नहीं होता है? नॉट यूज बिफोर नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज और टेरिटरीज एक्सेप्ट इन ग्रुप्स. हमारे देशों के आगे हम द नहीं लगाते, जैसे द इंडिया नहीं होगा, द इंडिया या द ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं आएगा. इट बी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर. लेकिन यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट टुगेदर फॉर्म अ नेशन. सो द यूनाइटेड स्टेट्स, द नेदरलैंड्स, अगेन लैंड्स है देखिए, तो इसलिए द आता है इसके आगे. ठीक है. तो सर्टेन एक्सेप्शंस आते हैं. देन नेम्स ऑफ स्टेट, सिटीज और टाउन्स, हमारे जो स्टेट्स है, महाराष्ट्र, सिटीज मुंबई, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, इसके आगे भी द यूज नहीं होता है. फिर हमारे गलियों के नाम, नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स लाइक सरोवर, सदक,
लेन नंबर 3, शहीद भगत सिंह रोड, गली नंबर 7, अगेन इधर द यूज नहीं होगा। फिर नेम्स ऑफ लेक्स, हम जैसे उदय सागर लेक, लेक टिटिकाका, इधर भी यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ लेक्स है, जैसे ग्रेट लेक्स, एक कई लेक्स मिला के जो लेक, ये ग्रेट लेक बनता है, तो उसके आगे द यूज होगा। फिर नेम्स ऑफ माउंटेन्स एक्सेप्ट माउंटेन रेंजेस, अभी माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजुंगा के आगे द नहीं यूज होगा, लेकिन माउंटेन रेंजेस है जैसे विंध्या रेंज है, सिवलिक हिल्स, इसके आगे द यूज होगा। फिर नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, उनके आगे भी नहीं होगा, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, आप इसमें द यूज नहीं करेंगे। फिर नेम्स ऑफ आइलैंड्स एक्सेप्ट आइलैंड चेन्स, आइलैंड्स के आगे भी नहीं यूज होता है अगर आइलैंड चेन नहीं है तो। अभी ए और एंड कब यूज होता है? दीज आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या है? इनडेफिनेट इज द ऑपोजिट ऑफ डेफिनेट, मतलब दैट्स विच इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और डिफाइंड। जैसे आप कोई नॉन स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करें तो आप ए और एन यूज करेंगे। So when we use a and an, it signals that the noun before which it is used is indefinite or not specific. Okay. For example, she wants a cat for her birthday. Since a is used here, it could mean any cat. I'm not talking about a cat. अगर मैं बोलती she wants the cat for her birthday, तो वो कोई particular cat के बारे में बात करी। लेकिन मैंने यहाँ कहा she wants a cat. Again, please call a doctor. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही डॉक्टर को बुलाओ. This could refer to any doctor. I want to see an ostrich. अभी an could be any ostrich. Okay. लेकिन अब अभी a और and दो है, इसको अभी दोनों अलग अलग कहाँ यूज होता है? As a simple rule, a is used before noun starting with a consonant. ठीक है, consonant के साथ अगर आगे जो noun शुरू हो रहा है तो आप सीधा a यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं b consonant है, तो ये a boy, a cat, c is a consonant, s is a consonant, तो आप a यूज करेंगे। a flute, a nest, a zebra। हाँ, अभी an कब यूज करेंगे? सिंपल, जब vowel साउंड है तो आप an यूज करेंगे, जैसे an apple, an elephant, an ice cream, an umbrella। अभी exceptions क्या है? An is also used before nouns that start with silent h। अभी an है ना, vowels के पहले यूज होता है, लेकिन अगर इधर तो h is a consonant, लेकिन अगर आप जब ये वर्ड प्रोनाउंस करेंगे तो आप h साइलेंट रखते हैं, r बोलते हैं, इसको ऑनर बोलते हैं, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। तो जहां पर h साइलेंट है वो वर्ड्स के आगे भी आप an यूज कर सकते हैं। Similarly, when the first letter of a word is a vowel but is pronounced with a consonant sound, इसका opposite again a is used। जैसे ये तो है vowel, लेकिन a United Nations representative, a UK based company, you आप यूज करें, consonant sound यूज कर रहे हैं, तो again यहाँ an नहीं आएगा, a आएगा। ये बहुत छोटी differences है, लेकिन ये important है। Okay. Then this is also applicable for acronyms, जो short forms यूज करते हैं, LCD, HR, Human Resource Department, URL, इसमें भी ये an और a यूज होता है डिपेंडिंग ऑन आगे क्या वर्ड्स आ रहे हैं उसके ऊपर, उस हिसाब से इवन एक्रोनिम्स यूज an and a, the indefinite article. Now the indefinite articles are also used before countable nouns। जैसे हमने uncountable nouns के आगे the यूज किया था, countable nouns के आगे a और an यूज हो सकता है। Like water, अभी एग्जाम्पल, I want a bottle of water, water बोलती तो नहीं होता था, the water। We need a light in this room, I want to climb a mountain, I want to take a class in cooking, I will gift her a book। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कैसे यहाँ पर ए और एंड का जो यूसेज है। और अभी यहाँ काउंटेबल नाउन्स में देखा था, जहाँ वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, बट व्हेन यू कन्फाइन इट, मतलब आप उसको एक बॉटल में डाल देंगे तो इट बिकम्स काउंटेबल, मतलब आप 1 2 3 4 बॉटल, कितने भी बॉटल है, तो अगर आप बोल रहे हैं आई वांट अ बॉटल ऑफ वाटर, आप कोई नॉन स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बोलते थे आई वांट द बॉटल ऑफ वाटर, तो आप कोई पर्टिकुलर बॉटल के बारे में ही बात कर रहे हो, कोई जो आपको चाहिए वही। अभी अ बॉटल मतलब आपको कोई भी बॉटल ऑफ वाटर चलेगा ऐसे। ओके, अभी लाइट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, लेकिन आपको एक लाइट इस रूम में चाहिए, जैसे आप बोल रहे हो मुझे एक बल्ब लगाना है, ऐसे ना, आई वॉन्ट अ लाइट इन दिस रूम, मेरे को एक लाइट चाहिए इस रूम में, मतलब एक ही लाइट चाहिए। तो आप पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि आपको लाइट चाहिए इस रूम में, लेकिन अगेन लाइट इज नॉन स्पेसिफिक और सॉरी अनकाउंटेबल, but when you are talking within a room it becomes countable। Okay, so this is how the articles are used in sentences। so learn this carefully, because आगे हम लोग जब sentence form करना शुरू करेंगे तो आपको ये सब काम आएगा। Okay, चलो, with this I'll end this lesson। I'll request you to subscribe to the channel, क्योंकि I'll be posting more lessons in the coming days। Take care, God bless।